Hello everyone. I hope you all are good. So, in this lecture, we will discuss about a very interesting and very important topic related to the building. As you saw in topic, dam proofing part 1 means some parts of this dam proofing we will also discuss in lecture number next lecture. Hello everyone. I hope you all are good. So, let us start. The important topic is that is a dam proofing. Okay. So, in the previous classes we will discuss about the building layouts, building components. Okay. So, in this lecture we will discuss about the dam proofing. So, dam proofing is also a part of the building. Okay. So, in this lecture we discuss about definition of dam proofing course, DPC, causes, what is the causes of dam proofing and many other things. Okay. So, first of all let me introduce to myself. Myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department of Civil Engineering, BVD and IIT Lucknow. Okay. So, this is the material testing and construction practices KCE 401 subject code in your syllabus and 4th sem of the BTech. Okay, so, material testing and construction practices is a important subjects in your curriculum. In 4th sem in civil engineering you learn about these subjects whenever you completed the in previous semester surveying. Okay. So, other subjects. So, material testing and construction practices in this first and second units completed. After that in third unit the first topic is the welding components. We have completed the in first lecture module third the welding components. After that the planning and layout of the building constructions. In the second lecture of module third we have completed. Now, we will discuss in this class about the dam proofing means जब आप मॉड्यूल थर्ड एंड लेक्चर नंबर थर्ड ही है आपका डैम प्रूफिंग। तो जब आप बिल्डिंग बनाना शुरू किए आपने लेआउट अच्छे से कर दिया, लाइनिंग कर दी, वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर दिया, फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया, तो जैसे फाउंडेशन बन जाएगा उसके तुरंत बाद सुपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, उसके तुरंत बाद हमको डैम प्रूफिंग का यूज करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि ग्राउंड से जो सीपेज हो वाटर हो वो ऊपर वॉल्स में ना आए, उससे रोकने के लिए इसको हम वॉल पे वहाँ पे फाउंडेशन पे प्रोवाइड कराते हैं। कई टाइप से कई तरीके से उस वाटर को रोका जा सकता है, उसी में से एक प्रोसेस ही है डैम प्रूफिंग कोर्स। तो देखते हैं इसमें क्या है कि डैम प्रिवेंशन इज अ चीफ। अब देखिए डैम जो आ जाएगी तो बिल्डिंग बहुत बेकार लगेगी, कितना भी आप उसमें सब कर देंगे, बहुत अच्छे से बना के तैयार कर देंगे और साल और 2 साल में ही उसमें डैमिंग आ गई तो फिर पूरा सब बेकार हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्चे भी बढ़ते रहेंगे और अपीयरेंस भी ख़राब हो जाएगा और हेडेक रहेगी आपकी। तो डैम प्रिवेंशन इज अ चीफ रिक्वायरमेंट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग डैम्पनेस। ओके, so one of the basic requirement in all the building is that structure should be dry as far as possible। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बहुत ही ड्राई होना चाहिए। If this is not satisfied, it is likely that building may become inhabitable and unsafe from structure point of view। ओके, तो ये तो पता ही कि अगर उसमें सीलन आती रहे, पानी इधर उधर वॉल से टपकता रहे, वॉल में आ जाए तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आप वहाँ रह नहीं सकते हो किसी बिल्डिंग में। ओके, तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डैम्पनेस, तो इसके बारे में ज़्यादा समझना है और बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले इसको हमें ज़रूर कंस्ट्रक्शन में लाना पड़ेगा, तो इसीलिए कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्डिंग्स के जो कंपोनेंट्स हैं वही सारे आपके डिस्कस होंगे इस यूनिट में, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात होगी एक्सप्लेन करते हुए पूरा। In order to prevent entry of damp into a building, the courses known as damp proofing courses, जितने भी कोर्सेस हैं उनका क्या है वो प्रिवेंट कर रहे हैं डैम की एंट्री करने से बिल्डिंग में। ओके, तो वो कोर्सेज को हम लोग डैम प्रूफिंग कोर्सेज कहेंगे और प्रोवाइडेड एट वेरियस लेवल ऑफ एंट्री ऑफ डैम्प इनटू द बिल्डिंग्स। प्रेजेंटली ऑल बिल्डिंग्स आर गिवन डीपीसी ट्रीटमेंट। अब एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी बिल्डिंग हो उसमें डीपीसी ट्रीटमेंट दिया ही जाता है। सो डीपीसी प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम
walls, floor and basement of the buildings. The treatment given to a roof of building for some causes is called waterproofing. The treatment given to roof of the buildings for some causes is called waterproofing. जो चीज़ डीपीसी यहाँ काम कर रही है वही अगर हम रूफ में प्रोवाइड करें कि अगर कोई कारणवश हमारा रूफ से पानी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सिंपल सा याद रखो, जहाँ पर भी बिल्डिंग में वाटर से प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपकी वॉल्स में, वहाँ सीलिंग्स आई, तो जब हम रूफ में ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड कराते हैं उस वाटर को रोकने के लिए, तो उसको हम वाटर प्रूफिंग बोलते हैं. कॉजेस ऑफ डैम्पनेस रिस्पॉन्सिबल कॉजेस और वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग. क्या क्या होंगे? फॉल्टी डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर. कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं? तो हो सकता है कि आपने जब डिजाइन कर रहे थे तब वहाँ पे कोई फॉल्ट हुई है, दैट्स वाई द डैम्पनेस क्रिएटेड. अगर डिजाइन अच्छी हुई है, सब कुछ सही है, तो हो सकता है ना हो डैम्पनेस. ओके, इसीलिए आजकल हर बिल्डिंग में डैम्पनेस एक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है. तो फॉल्टी डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर भी डैम्पनेस का बिल्डिंग में सॉरी मेन कारण होता है. सेकेंड इज द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, पुअर वर्कमैनशिप. हो सकता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ही गलत हो गया हो और वहाँ पे जो लोग लगे थे उन्होंने भी सही ना हो, वर्कमैनशिप भी पुअर होनी चाहिए. तीसरा पॉइंट है यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन. तो ये भी होगा कि जो हमारा यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, अगर आपने किसी भी बिल्डिंग में, जो कि आजकल करते हैं ठेकेदार लोग जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, पैसे बचाने के लिए अगर मटेरियल उन्होंने पुअर क्वालिटी का यूज कर दिया तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस चीज़ का. These causes given rise to an easy access to moisture to the building from different points such as rain penetration through the walls, roofs, floor, etc. The moisture entering into the building from foundation and roof travel in different direction further under the effect of capillary action and gravity respectively. जो कि मैंने आपको बताया कि ये वाटर कैसे मूव करने लगता है किसी भी वॉल में रूफ से, तो ये कैपिलरी एक्शन के कारण, रूफ से तो ग्रेविटी एक्शन के कारण भी नीचे आ सकता है अगर वहाँ पे कहीं फिल रहा, और रेन के कारण हो सकता है. ओके, तो द एंट्री ऑफ द वाटर एंड इट्स मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग आर पॉजिटिवली ड्यू टू द वन आर मोर ऑफ द कॉजेस लिस्टेड एबव. तो ये जो हमने अभी कुछ आपको कॉजेस बताए हैं उनमें से कोई भी कॉजेस आपके हो सकते हैं. किसके लिए? वाटर का इंटर करना बिल्डिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, तो राइजिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड, द सबसॉइल और ग्राउंड ऑन विच द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड may be made of soil which easily given an access to water to create dampness in the buildings. Generally, the foundation dampness is caused when the building structures are constructed on low-lying waterlogged areas where a subsoil of clay or pits is commonly found, through which dampness will easily rise under capillary action unless properly treated. Okay? तो आप ये लिख सकते हो कि जो राइजिंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड और द सबसॉइल जो होती है, और ग्राउंड ऑन विच द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, जिस पे बनाई हमने, और उससे जब हमारा राइज होता है मेड ऑफ सॉइल विच इजली गिवन एन एक्सेस टू द वाटर टू क्रिएट डैम्पनेस इन द बिल्डिंग. Generally, the foundation dampness is caused when the building structures are constructed on low-lying waterlogged areas where a subsoil or clay or peat is commonly found, through which dampness will easily rise under the capillary action unless properly treated. अगर नहीं किया treated तो dampness proofing course जो provide कराते हैं DPC, वो सिर्फ इसी के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए, यही वाटर को. This dampness further find its way to the floor, walls, etc. through the plinth. This dampness जो होती है वो हम क्या करते हैं, further find its way to the floors, walls, etc. through the plinth. ओके, तो plinth भी हमारा ये काम करती है. तो आपने सबसे पहला पॉइंट देखा है कि राइजिंग ऑफ मॉइस्चर जो होता है कहाँ से हो सकता है. ग्राउंड में, अंडरग्राउंड से जब वाटर जाता है, सॉइल जिस पे बना हुआ होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लो लाइंग वाटर लेवल है, लॉग्स हैं, तो वहाँ पर ये राइज कर सकता है. पहला पॉइंट आप
इसके कारण डैम्पनेस क्रिएट हो सकती है। तुम वही इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से कॉजेस हैं और कैसे कैसे वाटर राइज हो सकता है। दूसरा है आपका बिल्डिंग्स में वाटर का वहाँ पे उसकी वॉल्स में रहना, रूफ में रहना या बिल्डिंग्स के किसी पार्ट में रहना, हो सकता है कि एक्शन ऑफ रेन वाटर। ओके, तो एक्शन ऑफ रेन वाटर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? एक्शन ऑफ रेन वाटर में क्या होगा, वेन एवर द फेस ऑफ वॉल आर नॉट सुटेबली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोजर टू हैवी शॉवर्स ऑफ रेन। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे वॉल्स भी कभी कभी प्रोटेक्टेड ना हों, ओके, आप उसमें प्लास्टर ही ना कीजिए और प्लास्टर भी बहुत ही खराब मटेरियल से कर दिए, उसके बाद भी अगर हैवी रेन शॉवर्स उस पर पड़ रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दे बिकेम द सोर्स ऑफ डैम्पनेस इन अ स्ट्रक्चर। Similarly, the poor mortar joints in wall and cracked roof also allow dampness to enter the building structure. Sometimes due to the faulty eave courses and the eave gutters, the rain water may percolate through the roof covering. जो रूफ कवरिंग होती है, अगर वहाँ से वाटर नहीं भी निकल रहा है, रूफ पे ही फिल हो गया, तो उसके कारण भी हो सकता है। अब इतना रेन हैवी हुई और रूफ पे पानी भरा हुआ है, बारिश हो रही है, तो फिर उससे भी हमारा ये हो सकता है। ओके, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है डैम्पनेस की। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, रेन पेनिट्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द वॉल, ऑल पैरापेट्स, वॉल्स एंड कंपाउंड वॉल्स of the building which have not been protected from rain penetration by using damp proofing courses or by such measures on their exposed tops are subjected to dampness. This dampness in the buildings is of serious natures and may result in unhealthy living condition or even in structurally unsafe conditions. अब देखिए, आपने ग्राउंड में तो दे दिया, आपने कहा रूफ पे भी हम डीपीसी यूज कर डालेंगे, वहाँ से भी पानी को नहीं जाने देंगे। जो हमने कंपोनेंट्स रूफ के साथ में पैरापेट्स की बात की थी, अगर उस पैरापेट्स को आपने सीरियसली नहीं लिया, आपने सिर्फ इतना लिया कि चलिए वो बाउंड्री ऐसी रूफ पर है, छोड़ दीजिए उसको, तो उसके थ्रू भी पेनिट्रेशन वाटर का हो सकता है आपकी बिल्डिंग में, और फिर क्या होगा, फिर वो बिल्डिंग आपकी फिर ख़राब कर देगी। तो कहीं पर भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है। तो एक ये भी कारण हो सकता है डैम्पनेस का। फोर्थ पॉइंट क्या है, सॉरी, फोर्थ है कंडेंसेशन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। फोर्थ पॉइंट ये है कि वेन एवर द वार्म एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कूल्ड, इट गिव्स राइज टू प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एक ये भी पॉइंट है आपका कंडेंसेशन। ऑन अकाउंट ऑफ द कंडेंसेशन द मॉइस्चर इज डिपोजिटेड ऑन द होल एरिया ऑफ वॉल, फ्लोर्स एंड सीलिंग। However, the source of dampness is prevalent only the certain place in India where very cold climate exists. ऐसा भी हो सकता है कि आपका चौथा पॉइंट में ये लिख सकते हो, कंडेंसेशन के कारण भी वहाँ पे डैम्पनेस क्रिएट हो सकती है। ओके, तो ये कहाँ पे होती है, जैसे कहीं पे ज़्यादा ही चेंजेस होते हैं या हमारा कोल्ड क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। अब जैसे बहुत ज़्यादा ही कोल्ड रहता है तो वॉल्स में फिर आ जाएंगी, तो इंडिया में ज़्यादा ये नहीं कहीं एग्जिस्ट करते हैं। पांचवी आपकी मिसलेनियस सोर्सेस और कॉजेस हो सकते हैं, कुछ और भी रीजन्स हो सकते हैं जिनके कारण डैम्पनेस क्रिएट हो सकती है। ओके, अभी तक इस क्लास में आपने समझा कि डैम्पनेस एक्चुअली है क्या और उसके कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से कॉजेस हैं जिनके कारण डैम्पनेस होती है। The various other sources responsible for dampness in the buildings are mentioned below. और कौन कौन से हैं जिनके कारण डैम्पनेस हो सकती है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है पुअर ड्रेनेज ऑफ साइट। ये वाला ध्यान रखिए आप कि पुअर ड्रेनेज ऑफ साइट। तो अगर साइट का बहुत ही ड्रेनेज अगर कहीं पर ख़राब है, उससे भी डैम्पनेस क्रिएट हो सकती है। The structure is located on low-lying sites cause waterlogged condition where impervious soil is present underneath the foundation. Then there is also a dampness or the problems of dampness created. So, such structures which are not well drained cause dampness in building through the
foundation. Okay. So, for that prevent from the dampness, we make a good drainage system of the site. Second points, imperfect orientation. There is the imperfect orientation. Whenever the orientation of the building is not proper, or geographical condition are such that walls of building get less of the direct sun rays and more heavy showers of the rains, then such walls become the prone of dampness. Means whenever some walls we created and whenever the showers of rains comes, then the wall face is in front. Whatever the sun rays comes, then the front of the wall is not on the face of the sun rays. So, in that condition अगर ये चीज़ हुई कि बारिश हो रही तो तुरंत सीधे उस जिस भी एरिया में रह रहे हो वहाँ ओरिएंटेशन सही नहीं, आपको पता रहता है कि किस डायरेक्शन में बारिश ज़्यादा होगी, आप पता चले उसी डायरेक्शन वॉल बनी, सारी बारिश आपकी वॉल ही हैंडल कर रही है और सन रेज एट दैट टाइम पता चले आपने केवल सुबह के सन रेज ही वहाँ पहुँच रही है 9 बजे से 9 बजे तक जो रेज आ जाए वो उस वॉल पे लग रही है, उसके अलावा आ ही नहीं रही है, तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इम्परफेक्ट ओरिएंटेशन भी हो सकता है आपका डैम्पनेस के लिए। कंस्ट्रक्शन डैम्पनेस फोर्थ, ओके, सी पॉइंट जो है ये मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, मेन अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन डैम्पनेस इफ मोर वाटर हैज बीन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यू टू द पुअर वर्कमैनशिप द वॉल्स आर ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन डैम्प कंडीशन फॉर सफिशिएंट टाइम्स। The fourth D point is dampness due to the defective constructions. Okay, ये point आप याद रखेंगे। तो dampness due to the defective construction. Dampness is building is also caused due to the poor workmanship or method of construction versus inadequate roof slopes, defective rainwater pipes connections, defective joints in the roof, improper constructions of the walls etc. Effect of dampness, the various effects indirectly defect caused due to the dampness in building are mentioned below. All effect mainly result in poor functional performance, ugly appearance, structure weakness of the buildings. तो ये अगर जो चार हमने ये डिसाइड किया, चार हमने मेन जो डिस्कस किए हैं, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे डैम्पनेस बिल्डिंग में आती है। ओके, तो ये सारे चीज़ें जो होती हैं बिल्डिंग्स के लिए हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस क्या होंगे, तीसरे नंबर पर ये चीज़ आती है। सबसे पहले आपने डैम्पनेस देखा, ओके, पूरा डैम्पनेस समझ गए, शुरुआत में लेक्चर में आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। फिर आपने देखा कौन कौन से कॉजेस हैं, तो कई कॉजेस, मेन कॉजेस, सब कॉजेस, मिसलेनियस कॉजेस डिस्कस किए हैं अभी तक क्लास में, वो आप पीछे से लिख सकते हैं, आप इसको क्लास को स्टार्टिंग से देखकर इस लेक्चर को। इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस क्या होगा, अगर डैम्पनेस आ गए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्यों हमको डैम्पनेस को बचाना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ देखिए ध्यान से। A damp building creates unhealthy living and working condition for occupants. अगर डैम्पनेस होगी तो वहाँ पे ना तो रहना अच्छा लगेगा, ना ही कोई काम कर सकते हो आप। ओके, और क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ डैम्प कंडीशन कॉज इफ्लोरेसेंस ऑन बिल्डिंग सरफेस, जो कि बहुत ही बेकार दिखेगी, बिल्डिंग को बेकार कर देगी। ओके, which ultimately may result in the disintegrates of bricks, stones, tiles etc. and hence in the reduction of strength. और जब होगी तो उसकी लाइफ जो रहेगी बिल्डिंग की वो बहुत कम हो जाएगी। और क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इट मे कॉज ब्लीचिंग एंड फ्लैकिंग ऑफ द पेंट्स which result the formation of colored patches on the wall surface and ceilings. डिफरेंट डिफरेंट्स के पैचेस पड़ जाएंगे, सीलिंग्स हो, सरफेस कहीं वाटर की होगी वहाँ पर, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही अनहाइजीनिक और देखने में बहुत ही अगली दिखेगा। ओके, देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स में आपने, वहाँ पे आप देखिए ऐसा होता है। इट मे रिजल्ट्स इन द कोरोजन ऑफ मेटल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब आपको पता है बिल्डिंग्स जब कंस्ट्रक्ट की जाती हैं कुछ मेटल्स भी यूज होते हैं, आरसीसी में हम रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं, अगर वहाँ पे पहुँच रहा है
सोचिए वाटर, तो वो उसके साथ भी वहाँ रिएक्शन करेगा, कोरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और फिर उनकी स्ट्रेंथ कम कर देगा, तो वो भी बेकार हो जाएंगे और फिर बिल्डिंग की लाइफ अल्टीमेटली कम हो जाएगी। इट मे रिजल्ट इन कोरोजन हो गया, द मटेरियल यूज एज द फ्लोर कवरिंग सच एज टाइल्स और डैमेज बिकॉज दे लॉस एडहेसिन विद द फ्लोर बेस। अब अगर जैसे टाइल्स लगाई आपने और नीचे जिस बेस पे टाइल्स आपने लगाए हैं उस पर अगर वाटर आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसका जो एडहेसन, जो उसका दोनों टाइल्स का और उस जो बेस में मटेरियल होगा मोटार हो, तो उसके साथ जो कनेक्टिविटी रहती है, जो दोनों एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, वो उसका एडहेसिव फोर्स कम हो सकता है। फिर क्या होगा, टाइल्स टूटने लगेगी, टूटने लगेगी, तो वो भी आपका इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस में हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि टिम्बर है व्हेन इन कांटेक्ट विद द डैम्प कंडीशन गेट डिटेरियोरेटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वार्पिंग, वकलिंग एंड रोलिंग ऑफ टिम्बर्स। All electric fitting get deteriorated causing leakage of the electric current with the potential danger of a short circuit। अगर बिल्डिंग में डैम्पनेस है और इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा आप जानते ही हो वहाँ तक कहीं पहुँच गया तो फिर हो सकता है करंट किसी के लग भी जाए और फिर कई हजार्डस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं डैम्पनेस के, डैम्पनेस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द टर्माइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो बहुत ज़्यादा रहता था। हैंस क्रिएट्स अनहाइजेनिक कंडीशन इन द बिल्डिंग। अब सोचिए आप रह रहे वहीं पे आपके साथ टर्माइट्स भी हैं तो कैसा लगेगा आपको, आप उस बिल्डिंग में रहना पसंद ही नहीं करोगे। ओके, डैम्पनेस व्हेन एक्यूपाइड बाय द वार्मथ एंड द डार्कनेस ब्रीड्स द जर्म्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, न्यूरोलॉजिया एक्यूट एंड द क्रोनिक rheumatism etc which sometimes result in the fatal disease। अब सोचिए इतनी खतरनाक चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, ब्रीड्स यहाँ पे आ सकते हैं, जर्म्स क्रिएट हो सकते हैं इस डैम्पनेस के कारण, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक फेटल डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है और हेल्थ के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। ओके, तो आप समझिए डैम्पनेस के क्या कौन से इफेक्ट हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं। आप कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बनाइए, अगर उसमें डैम्पनेस प्रॉब्लम आ गई तो पूरा समझ लीजिए बिल्डिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ डैम्प प्रिवेंशन। ओके, तो हम फिर अगर ये प्रॉब्लम्स हो गई मान लीजिए, पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कभी भी कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो कभी भी आपका क्या होना चाहिए, बिल्डिंग में डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसको रोके कैसे ना आए, और या आ गई बिल्डिंग में तो कैसे उसको हम रोक सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं डैम्प प्रिवेंशन के लिए। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द डैम्पनेस इन द बिल्डिंग्स बिफोर अप्लाइंग द वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड डिस्क्राइब लेटर। यहाँ पर हम जानेंगे, क्या जानेंगे चीज़ें, कि सबसे पहला पॉइंट है द साइट शुड बी लोकेटेड ऑन हाई ग्राउंड एंड वेल ड्रेन सॉइल to safeguard against foundation dampness. It should be ensured that the water level is at least 3 मीटर। सबसे पहले उनकी टेक्निक्स को जानने के लिए कैसे प्रिवेंट करें, सबसे पहले हमको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि 3 मीटर बिलो में हमारी वाटर टेबल होनी चाहिए। बिलो द सरफेस ग्राउंड ऑल लोएस्ट पॉइंट इवन द वेट सीजन। फॉर द वेटर ड्रेनेज द ग्राउंड सरफेस सराउंडिंग द बिल्डिंग शुड ऑल्सो स्लोप अवे। और एक अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपकी बिल्डिंग के साइड की जो भी अगर बिल्डिंग है तो कोई बात नहीं, वरना साइड में ओपन एरिया है तो वहाँ पे स्लोप होना चाहिए ताकि वाटर का ड्रेनेज बहुत अच्छे से हो सके। ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सॉरी, ऑल द एक्सपोज्ड वॉल्स शुड बी सफिशिएंट थिकनेस ऑफ सेफ गार्ड अगेंस्ट रेन पेनिट्रेशन। इससे भी होना चाहिए रेन पेनिट्रेशन ना हो। ए वॉल्स और ऑफ ब्रिक्स दे शुड बी एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर थिकनेस, और अगर ब्रिक की है तो वो भी 30 सेंटीमीटर थिकनेस के साथ होनी चाहिए। ब्रिक्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी विच आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स सच एज द क्रैक्स, फ्लॉज, लंब ऑफ लाइन स्टोन शुड बी यूज्ड। और ऐसा नहीं ब्रिक्स भी आपने डिफेक्टिव यूज कर दी, ओके, तो कैसे भी स्ट्रक्चर बनाया, मोटार से नहीं हुआ तो आपने क्या किया, ब्रिक से वहाँ पे वाटर इंटर कर गया। ओके, तो ये सारे उसमें क्या ब्रिक में प्रॉब्लम्स होती है पढ़ी आपने, तो वो भी हमें प्रॉब्लम से नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट ऑब्जॉर्व वाटर
more than 1/8 of their own weight when soaked in water from 24 hours. सोचिए 24 घंटे अगर ब्रिक को हम वाटर में रखें तो वो 1/8 ऑफ देयर ओन वेट से वाटर को ज़्यादा नहीं एब्जॉर्व करें। नहीं पता चले बारिश होती रही 2-4 दिन तो वो सब वाटर को जितना उसका वेट उतने वाटर और सोक कर लिया उसने, तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बिल्डिंग में। तो ये भी होना चाहिए। ओके, गुड क्वालिटी सीमेंट मोटार जो यूज करते हो वो भी एक अच्छे क्वालिटी का यूज करना चाहिए आपको टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट पैटर्न्स एंड परफेक्ट बॉन्ड्स इन द बिल्डिंग यूनिट्स थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क। दिस इज द इसेंशियल टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन कैविटीज एंड अक्रेंस ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट्स। ओके, तो इस टाइप से आपके होने चाहिए कॉर्नियस एंड स्ट्रिंग्स, ऑल द एक्सपोज सरफेस शुड बी covered with waterproofing cement plasters. Hollow walls are more reliable than the solid walls in preventing dampness and hence the cavity wall construction should be adopted whenever the possible. तो ये cavity wall भी अभी पढ़ेंगे आप अगले लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है डैम्पनेस से प्रिवेंट के लिए, सॉलिड वॉल से ज़्यादा अच्छी रहती है हॉलो वॉल। ओके, तो दीज आर द लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द वाटर रिपेल्ड मटेरियल सच एज द, कौन कौन से मटेरियल्स रहेंगे उनके बारे में जान लीजिए, लिख लीजिए। बिटुमिनस फेल्ट, मास्टिक एस्फॉल्ट, प्लास्टिक सीट, सीमेंट कंक्रीट, मोटार एंड मेटल सीट, ये सारी जो सीट्स हैं इनको हम लोग यूज कर सकते हैं मेम्ब्रेन्स के तौर पर, उसमें जब हम वहाँ पे डीपीसी यूज करते हैं डैम से प्रूव करने के लिए, बचाने के लिए। ओके, तो आप इतनी चीज़ें आपको करनी हैं और ये बनानी है विच आर इंटरप्रेटेड इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर और लोकेशन व्हेनेवर वाटर इज एंट्री एंटीसिपेटेड। तो इन मटेरियल्स के अगर यूज करेंगे तो उसको हम बचा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और कैविटी वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें और डैम्पनेस के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये चीज़ें लिख लेना। ओके क्लास, थैंक यू।